ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय आविराविर्मयेधि रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यं रुद्रयत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्। महालया महालया अमावस्या प्रतिपक्ष अमावस्या तर्पण दिवस या पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस दिन कई लोग अपने पितरों के शांति के लिए गंगा या अन्य नदियों में स्नान करके पिंडदान या श्राद्ध जैसे कर्म भी करते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तिल जल अर्पित किया जाता है। आमतौर पर मृत पूर्वजों को जल अर्पित करना तर्पण कहलाता है। पितृपक्ष के साथ महालया तर्पण समाप्त होता है। देवी पक्ष की शुरुआत महालया के दिन से होती है, इसलिए पूजा का आनंद महालया के दिन से ही शुरू हो जाती है। আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে মগ শিশিরে শিশিরে তব চরণ ধুইয়ে দেব শিউলি তব শ্রী চরণে আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে। বরষেতে একবার ধরাই শরৎ আসে, তখনই গগনে তব স্মিত মুখ ভেসে আসে। আশিসে ভর মাগ তব প্রিয় ধরণী, আশিসে ভর মাগ তব প্রিয় ধরণী। তব বাণী ভেসে যাক অখিল বিমানে আনন্দময়ী এলো আনন্দ ভবনে আনন্দময়ী এলো आनंद भवने। बंगाली हिंदुओं के लिए महालया की सुबह वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में महिषासुर मर्दिनी भजन सुनने के लिए महालया का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को झकझोर देने वाली आवाज हर किसी को उस दिन सुबह जल्दी जगा देती है। আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোক মঞ্জির। ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা। আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। বাজলো তোমার আলোর বিনু
সেই আনন্দ যোগে সবার মধুর আমন্ত্রণ মাতলো রে ভুবন বাজলো তোমার आलोर दिनों। देवी की यह आगमन केवल अतीत की एक घटना नहीं है, केवल एक वार्षिक धार्मिक आयोजन नहीं है। इसने अब एक बड़ा सामाजिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जब भी दुनिया में बुराई बढ़ता है, तब उन्हें नाश करने के लिए देवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी बनकर प्रकट होती है और बुराई की नाश करती है। भगवती महामाया তুমি ত্রিগুণাত্মিকা, তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী, সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী, তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী, আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী, তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী, তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গা, তিনি দাক্ষায়ণী সতী। দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শত দল মেলে বিকশিত হোক দিকে দিগান্তে। হে অমৃত জ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো 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 মা। জাগো জাগো দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা, জটাজুট ধারিণী সুমধুর ভাসিনী যৌবন শালিনী ত্রিনয়নী। জাগো জাগো দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। পূর্ণচন্দ্রাননা স্বর্ণবর্ণা দেবী পুষ্পে শোভিতা আভরণে ভূষিতা। পূর্ণচন্দ্রাননা স্বর্ণবর্ণা দেবী পুষ্পে শোভিতা আভরণে ভূষিতা। প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী, প্রহরণধারিণী অসুর বিনাশিনী। অস্ত্র সাজে তুমি সাজো দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী অসুর দলনী দেবী দুর্গা। आपको बता दें कि महालया का महत्व बंगाली समुदायों में विशेष माना जाता है। वहाँ इस दिन की धूमधाम देखते ही बनती है। माँ दुर्गा में आस्था रखने वाले लोगों को इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है और महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत करते हैं।
इस दिन विधि विधान से माता दुर्गा की पूजा अर्चना करके उनसे अपने घर आगमन के लिए निवेदन किया जाता है। महालया के दिन ही हर मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करते हैं। इसके बाद से माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप देने का कार्य शुरू किया जाता है। महिषासुर एक असुर जाति का था, जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया। माँ के उस रूप को माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। महिषासुर रंभ असुर व एक भैंस का पुत्र था, जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने अवतार लिया व उस दुष्ट राक्षस का वध किया। শিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী শিউলি ঝরানো দিনানিশি শিউলি ঝরানো দিনানিশি চিরদিনের বাণী ভোরের আগমনী শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের সোনার আলোয় জাগবে পৃথিবী, বাজবে আলোর বাঁশি। সোনার আলোয় জাগবে পৃথিবী, বাজবে আলোর বাঁশি। আকাশ ফোটে মহামায়ার, ভুবন মোহিনী হাসি। দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে, দিকে দিকে আজ উঠবে বেজে মায়ের পদধ্বনি। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী। महिषासुर अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा, तो इस पर ब्रह्मा जी ने यह देने से मना कर दिया। महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा व अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपने असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा पाताल लोक, देवलोक सभी जगह पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित हो गए। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को भी परेशान करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई व धर्म की कोई मूल्य नहीं रहा। পাতালে ব্যাপিত মহিষাসুরের ত্রাস। तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों देवताओं ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया।
त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्ति पुंज का निर्माण हुआ और उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। यह रूप अत्यंत भयानक था, जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को सौंप दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ कात्यायनी ने अपने अस्त्रों से महिषासुर की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। यह युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा। वह माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश करती रही। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। हुंकारे शबारूढ़े नील नीरजलोचने त्रैलक्यैकमुखे दिव्ये कालिकायै नमोस्तुते। हुंकारे प्रत्ययालीढपदे घोरे मुण्डमाला प्रलम्बिते खर्वेलम्बदरे भीमे कालिकायै नमोस्तुते। हुंकारे नवयौवन संपन्न। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षस सेना सहित संहार कर डाला और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना की। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। माँ के इस तेज को देखकर दैत्यराज बहुत डर गया, लेकिन देवी ने अपने शेर और शस्त्रों से उसका संहार किया। तभी से माता को माँ दुर्गा के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मधुकैटभ विध्वंसी विधात्री वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। धूम्रनेत्र वधे देवी धर्म कामार्थदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीज वधे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। निशुम्भ शुम्भ निर्णाशि त्रैलोक्य शुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। वन्दिताङ्घ्रि युगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। अचिन्त्य रूप चरिते सर्वशत्रु विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि
यशो देहि दिशो जहि न तेभ्य सर्वदा भक्ता चापर्णे दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सावध्यो भक्ति पूर्वं त्वं चण्डिके व्यधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि